Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 6. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Codecraft, Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 8, Introduction to HTML and CSS. So here in this chapter we are going to learn about HTML and CSS. Let's move on to the core concepts. So on completion of this chapter you will be able to know, इस chapter के खत्म होते ही आप क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे. You will be able to know about what is HTML. HTML coding we will learn here. We will learn about HTML editors, HTML rules, structure of an HTML document, viewing an HTML document, how to create and save an HTML document. Line break means BR tag. Text emphasizing elements, heading attributes, cascading style sheets which is CSS, methods of applying CSS, background properties. So these all topics we are going to cover in this chapter. Let's move on to warm up. So here you have to identify the following web browsers in the space given below. यहाँ पे space है, यहाँ पे हमें इन browsers को identify करना है. तो first one is Chrome, then is Apple Safari, next is Microsoft Edge, next is Mozilla Firefox, and next is Opera. So these are the answers that you have to write down now. Let's move on to the topic. So a computer on the internet that shares available data and information is called a server. वो कंप्यूटर जो क्या करता है इंटरनेट की मदद से डेटा को इंफॉर्मेशन को शेयर करता है उसे हम सर्वर कहते हैं. A computer on the internet that accesses data and information from the server is called the client. और वो कंप्यूटर जो इंटरनेट की मदद से डेटा को एक्सेस करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है सर्वर से, उसे हम क्लाइंट कहते हैं. अ सर्वर स्टोर्स फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट. सर्वर क्या करता है, फाइल्स और इंफॉर्मेशन को जो है वेबसाइट के फॉर्म में जो है स्टोर करता है. दीज वेबसाइट्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस. और ये जो वेबसाइट्स है इसमें बहुत सारे आपको वेब पेजेस मिलेंगे. A web page is a page that carries text, graphics, videos, audios and links to other web pages. ये जो वेबसाइट है ये क्या है, ये एक पेज है जो कि जिसमें आपको टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, ऑडियोस और दूसरी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको वेब पेज से जोड़ती हैं. These web pages are written in hypertext markup language. ये जो वेब पेजेस है ये hypertext markup language जिसको हम HTML कहते हैं उसमें लिखी जाती हैं. What is HTML? So hypertext markup language is a computer language which is used to create web pages. जिसे हम web pages create करने के लिए यूज़ करते हैं. HTML describes the content. ये content को describe करता है, format को, layout को describe करता है कि किस content में, format में या फिर layout में web pages को display किया जाएगा, कहाँ पे, world wide web पे. In this chapter you will learn about HTML. इस chapter में हम HTML के बारे में पढ़ेंगे. It is a new language specification proposed for web pages. ये एक नया language है जो web pages के लिए शुरू किया गया है. Two basic tools are needed to create HTML documents. दो basic tools की ज़रूरत होती है यहाँ पे HTML document को create करने के लिए. पहला है HTML editor, दूसरा है web browser. So Tim Berners-Lee and his team developed the HTML language. ये जो team है इसने HTML language को डेवलप किया था CERN में, जो कि एक यूरोपियन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड की कंपनी है. HTML editors. So an HTML editor is required to create an HTML document. HTML document को create करने के लिए एक HTML editor की ज़रूरत होती है. An HTML editor is a software program that enables you to easily create HTML document. ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको हेल्प करता है इजिली क्रिएट करने में HTML डॉक्यूमेंट्स को. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडिटर्स. दो अलग अलग तरीके के एडिटर्स होते हैं. पहला है WYSI, WYG एडिटर्स एंड टेक्स्ट एडिटर्स. अब क्या है ये दोनों एडिटर्स, लेट्स सी. सो WYSI, WYG एडिटर्स जो है, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. सो
what you see is what you get editors lets you create web pages without knowing how to write HTML codes. इसमें जो है हम बिना HTML कोड्स जाने भी हम जो है कोड्स को लिख सकते हैं, मीन्स अगर उसकी जानकारी भी नहीं हमें तो भी हम ये कोड्स लिख सकते हैं. They have graphical interfaces and tools to develop web pages. इसमें आपको graphical interfaces मिलेगा जिसकी वजह से हम वेब पेजेस को डेवलप कर सकते हैं. एंड दे ऑल्सो अलाउ यू टू इंसर्ट इमेजेस, टेबल्स एक्सेट्रा. ये हमें इमेजेस, टेबल्स, बाकी चीज़ों को इंसर्ट करने में भी मदद करते हैं. Google Web Designer and Adobe Dreamweaver are two of the popular what you see is what you get HTML editors. ये दो जो है इस तरीके के HTML editors हैं. And Microsoft Front Page, which was a popular what you see is what you get HTML editor, once had been discontinued. So पहले जो Microsoft Front इस कैटेगरी में आता था, ये बहुत ही पॉपुलर जो HTML एडिटर था, लेकिन अब इसे जो है हटा दिया गया, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. The two main advantages of what you see is what you get HTML editors are, यहाँ पे दो मेन एडवांटेजेस दिए हैं इसके. पहला है वेबसाइट्स कैन बी क्रिएटेड क्विकली, यहाँ पे हम वेबसाइट बहुत जल्दी बना सकते हैं. एंड नॉलेज ऑफ HTML टैग्स और कमांड्स इज नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पे जो HTML टैग्स और कमांड्स है उसकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट एडिटर्स. So you can also create HTML documents with Notepad, WordPad और any other text editors. हम HTML documents को create कर सकते हैं Notepad, WordPad या फिर दूसरे text editor के साथ. But in this case you need to be familiar with HTML coding. लेकिन यहाँ पे आपको HTML coding के बारे में पता होना चाहिए, knowledge होनी चाहिए. So let's move on to HTML coding. क्या क्या codings हैं यहाँ पे? So the various components that make up the HTML code are, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो HTML कोड को बनाते हैं, वो है एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी. HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स. पहले चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. सो वेब पेज इज मेड अप ऑफ HTML एलिमेंट्स. जो वेब पेज है वो HTML एलिमेंट से बनता है. एंड HTML एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाई HTML टैग्स. और ये जो HTML एलिमेंट्स है ये जो है HTML टैग से जाने जाते हैं. HTML क्या है? ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है. एंड ये जो टैग है, अ टैग इज अ कमांड यूज्ड टू इंडिकेट हाउ योर वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर. ये जो टैग है ये बताता है कैसे हमारा जो वेब पेज है वो ब्राउजर पे दिखना चाहिए. अ टैग कंप्राइजेज ऑफ टेक्स्ट एनक्लोज इन एंगुलर ब्रैकेट. ये जो टैग है इसमें आपको टेक्स्ट मिलेगा जो कि एंगल ब्रैकेट में बंद रहता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML बॉडी एक्सेट्रा, ये सारे जो है एंगल ब्रैकेट में क्लोज्ड है. HTML एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरीके के होते हैं. पहला आता है कंटेनर एलिमेंट और दूसरा आता है एम्प्टी एलिमेंट्स. कंटेनर एलिमेंट्स ये क्या होते हैं? HTML एलिमेंट्स दैट रिक्वायर एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग. वो एलिमेंट जिसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों की जरूरत होती है उन्हें हम कंटेनर एलिमेंट्स कहते हैं. The tag is opened using the opening bracket. ये जो टैग है ये ओपनिंग ब्रैकेट से जो है शुरू होता है और क्लोज किया जाता है क्लोजिंग ब्रैकेट से. तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट हम यूज करते हैं यहाँ पे. These tags are always used in pairs. इन टैग्स को हमेशा हम पेयर्स में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल H1 ये है ओपनिंग टैग एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं S2 जो कि है क्लोजिंग टैग. So these are container elements जहाँ पे H1 ओपनिंग टैग है और S2 क्लोजिंग टैग है. अब आते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स पे. So HTML एलिमेंट्स जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है तो उन्हें हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल BR जो है ये एक एम्प्टी टैग है. नेक्स्ट HTML एट्रीब्यूट्स. So a special keyword that is used inside the tag to specify additional information about elements is called attribute. ये एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी टैग में दिखाने के लिए स्पेशल एडिशनल इन्फॉर्मेशन को उस एलिमेंट के बारे में, उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं. इट इज़ अ प्रॉपर्टी वैल्यू दैट मॉडिफाइज द HTML टैग. ये एक प्रॉपर्टी वैल्यू है जो कि उस HTML टैग को मॉडिफाई करता है. एंड दे हैव अ नेम वैल्यू पेयर. यहाँ पे आपको एक नेम वैल्यू पेयर मिलेगा जहाँ पे आप ये देख सकते हैं HTML lang इक्वल टू EN US. तो यहाँ पे हम लैंग्वेज जो है US डाल रहे हैं. सो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो डिक्लेयर किया जा रहा है एक lang एट्रीब्यूट के साथ. सो ये जो है यहाँ पे हमने यूज़ किया वो एक एट्रीब्यूट है.
नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द HTML रूल्स. कौन कौन से रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं? सो HTML फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स नोन एज सिंटेक्स. HTML क्या करता है? कुछ रूल्स को फॉलो करता है जिन्हें हम सिंटेक्स कहते हैं. टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर नॉट केस सेंसिटिव. टैग्स और एट्रीब्यूट जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं. मीन्स यहाँ पे कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल लिखें, कुछ भी लिखें, स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें, कुछ भी लिखें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. एट्रीब्यूट्स वैल्यू शुड ऑलवेज बी एनक्लोज विद इन कोट्स. जो भी एट्रीब्यूट्स वैल्यू है वो कोट्स में रहेंगे आपके. डबल स्टाइल कोट्स आर द मोस्ट कॉमन. जो डबल स्टाइल कोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जो सिंगल कोट्स है ये भी अलाउ हैं. एट्रीब्यूट्स वैल्यू कैन बी केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव है, मीन्स कैपिटल को कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल को स्मॉल ही लिखना है. स्पेसेस बिटवीन टैग्स डू नॉट मैटर. टैग्स के बीच में जो स्पेसेस है उसका कोई भी मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बी जो है बोल्ड के लिए है, बोल्ड टेक्स्ट. इसी तरीके से अगर हम बी और यहाँ पे स्पेस डाल के लिखते हैं, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही यहाँ पे हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं. टैग नेम जो है इट कैन नॉट कंटेन स्पेसेस. यहाँ पे स्पेस नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने HTML स्पेस दे के लिखा तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है सेम नहीं माना जाएगा. एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड. एलिमेंट्स को हम एक साथ जोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो इटैलिसाइज करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसे, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी और आई दोनों ही लिख सकते हैं. एलिमेंट्स को हमने एक साथ जोड़ दिया है यहाँ पे और फिर जो है हमने लिख दिया है. लेकिन द फॉलोइंग विल बी इनकरेक्ट. अगर हमने बी लिख के आई लिख के इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ टैग लिख दिया, मीन्स बी लिखा फिर आई लिखा फिर बी लिखा और आई लिखा, तो ये गलत है. हमें क्या करना है? हमें पहले बी लिखना है, फिर आई लिखना है, फिर आई को ही यहाँ पे लिखना है पहले. तो आई लिखेंगे एंड देन वी विल राइट डाउन बी हियर. सो दिस वन इज राइट एंड द नेक्स्ट वन इज रॉन्ग हियर. Now let's move on to the structure of an HTML document. HTML document का structure क्या है? So the standard structure of an HTML document has two sections. यहाँ पे आपको दो sections मिलेंगे. पहला है head and body which is shown below, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं. So जो head section है इसमें आपको information मिलेगी उस document से related. जो body section है वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी जो भी display किया जाता है उस web page पे. तो web page पे जो भी चीज़ें display होंगी वो सारा body में लिखा जाएगा. इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स एक्सेट्रा. टेक्स्ट ग्राफिक्स सारी चीज़ें उसके अंदर ही आएंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हमने स्टार्ट किया, दिस इज आवर कोड दैट वी आर गोइंग टू राइट. सो डॉक टाइप HTML ओपन, हेडिंग ओपन, टाइटल ओपन. वी हैव रिटन द टाइटल, टाइटल क्लोज, हेडिंग क्लोज एंड देन बॉडी क्लोज. Heading close, then body open. We have written the body here, then body close, and then at last we will write down HTML close. So what is doc type HTML? So ये जो element है ये है starting element हमारी HTML document का, और ये क्या करता है? specify करता है किस type का document है. ये क्या है? ये एक empty element है और इसमें हमें closing tag की ज़रूरत नहीं होती. फिर आता है HTML एलिमेंट. ये जो HTML एलिमेंट है ये लिखा जाता है डॉक टाइप के बाद, एंड ये जो एलिमेंट है ये क्या करता है? डिफाइन करता है HTML डॉक्यूमेंट को. HTML डॉक्यूमेंट सारा इसके अंदर ही आपको मिलेगा. ये कंटेनर एलिमेंट है जिसमें आपको जो है एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग डालना पड़ेगा. A browser will interpret everything that comes in between as an HTML document. अब इस HTML डॉक्यूमेंट के बीच में जो भी चीज़ आएगी वो सारी चीज़ों को ब्राउज़र इंटरप्रेट करेगा. फिर आता है हेडिंग एलिमेंट. सो ये क्या है? ये जो हेडिंग एलिमेंट है यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अपने वेब पेज से रिलेटेड. यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी द इंफॉर्मेशन इन योर ब्राउज़र विंडो. लेकिन जो भी हम यहाँ पे डालेंगे वो हम अपने ब्राउज़र विंडो में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये क्या है? ये एक कंटेनर टैग है. फिर आता है टाइटल एलिमेंट. तो यहाँ पे हम टाइटल एलिमेंट में हम क्या डालते हैं? जो हमारे वेब पेज का टाइटल है वो आएगा. एंड जो टाइटल है इट शुड बी शॉर्ट और एंड लेस देन 64 कैरेक्टर्स. छोटा होना चाहिए, 64 कैरेक्टर्स से कम होना चाहिए. द टाइटल अपीयर्स ऑन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर विंडो. जो भी टाइटल है वो हमारे ब्राउजर विंडो के
जो है टाइटल बार पे दिखेगा एंड इट इज अ कंटेनर टैग, ये भी एक कंटेनर टैग है। नेक्स्ट आता है बॉडी एलिमेंट। सो जो बॉडी एलिमेंट है ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को, इसके अंदर आपको सारा टेक्स्ट मिलेगा जो भी वेब पेज पे डिस्प्ले करना है एंड ये भी एक कंटेनर टैग है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट और सेव करना है हमें। टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन एनी वर्ड प्रोसेसर। हम किसी भी वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं अगर हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, इन सब चीज़ों में हम डाल सकते हैं। So here we'll be using Notepad as a text editor for creating HTML documents. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम Notepad को यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर के फॉर्म में ताकि हम HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकें। So to create an HTML document, follow these steps. अगर आप HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर हमें ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है, फिर हमें विंडोज एक्सेसरीज में जाना है एंड वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है नोटपैड को। सो आफ्टर सेलेक्टिंग नोटपैड द नोटपैड विंडो विल अपीयर। ये है हमारी नोटपैड विंडो, ये हमारे सामने आ जाएगी एंड यहाँ पे जो कोड आपको दिख रहा है ये आपको टाइप करना है। सो दिस इज द कोड दैट वी हैव टू टाइप हियर। नाउ क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। अब हमें यहाँ पे जो फाइल मेन्यू दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना, सेव ऑप्शन को चूज करना है। सो आफ्टर दिस आवर प्रोग्राम विल बी सेव्ड। सो द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हियर। सेलेक्ट द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। यहाँ पे हमें एक सेव एज डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अब हमें वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे हमें अपनी फाइल को सेव करना है एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट फोल्डर, फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद हमें स्पेसिफाई करना है एक नेम अपने HTML फाइल का जिसमें हम एक एक्सटेंशन देंगे जिसे हम .html या फिर .htm लिख सकते हैं फाइल नेम बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट के बाद हमने .html लिखा है एंड देन वी हैव क्लिक्ड ऑन सेव बटन और फिर हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो भी हमारी फाइल थी, हमने जो भी बनाया था वो सब सेव हो जाएगा। अब सेव तो हो गया। नाउ व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट। अब हम डॉक्यूमेंट को देख कैसे सकते हैं। So to view an HTML file, we only need a web browser such as Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. So अगर हम अपनी HTML फाइल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। So here we are using Internet Explorer as it is a part of Windows. यहाँ पे हम Internet Explorer का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे Windows का पार्ट है। And to view an HTML document ऑन अ वेब ब्राउज़र फॉलो दी स्टेप्स। अगर आप HTML डॉक्यूमेंट को जो है अपने वेब ब्राउज़र पे व्यू करना चाहते हैं तो आपको ये जो स्टेप्स दिए हैं इन्हें फॉलो करना होगा। पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। अब हमें फाइल मेन्यू पे जाना है। नाउ क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन। अब हमें ओपन ऑप्शन को यहाँ से चूज करना है। Now the open dialog box will appear and click on the browse button. अब open dialog box में हमें जो यहाँ पे browse button मिल रहा है उस पर क्लिक करना है। The Internet Explorer dialog box appears and select the name of your HTML file to be opened. उस HTML फाइल को सिलेक्ट कर दे जो हम ओपन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हमें ओपन बटन पे क्लिक कर देना है एंड फिर क्या होगा, ओके पे क्लिक कर देना है। जो पाथ है वो सिलेक्टेड फाइल की वो यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स में दिख रही होगी। जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक कर दे। नाउ अब जैसे आपने क्लिक किया तो क्या हो गया, ये जो हमारी फाइल हमने बनाई थी दिस इज माय फर्स्ट पेज वाली वो हमारे सामने खुल जाएगी। सो योर वेब पेज विल बी शोन ऑन द वेब ब्राउजर। हमारा जो वेब पेज है हमारे वेब ब्राउजर पे हमें दिखने लगेगा एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट द टेक्स्ट गिवन विद इन द टाइटल टैग इज डिस्प्लेड ऑन द टाइटल ऑफ द टैग। हम देखेंगे हमने जो भी टाइटल टैग में लिखा था वो हमें यहाँ पे दिखाई देने लगा है एंड द टेक्स्ट गिवन विद द बॉडी टैग इज डिस्प्लेड एज अ बॉडी ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो बॉडी और टेक्स्ट दोनों चीजें हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, टाइटल और बॉडी दोनों यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। नाउ जस्ट नोटिस द एड्रेस बार ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब जो एड्रेस बार है हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर का उसको देखेंगे हम तो हमें यहाँ पे दिखेगा द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल नेम विथ एन एक्सटेंशन .html इज डिस्प्लेड हियर।
सो जो पूरा रास्ता है, पूरा पाथ है फाइल नेम का, वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा HTML.html के साथ। यहाँ पे ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि कहाँ पे है ये फाइल लोकेटेड। Now let's move on to line break BR tag. So BR tag है, ये जो है यूज किया जाता है लाइन को ब्रेक करने के लिए and display the next line without giving any space between two lines. बिना स्पेस दिए दो लाइन्स के बीच में हम यहाँ पे लाइन ब्रेक कर सकते हैं। So ये क्या है, ये एक empty tag है and it should be given at the end of the line after which a new line is required. इसे जो है लाइन के एंड में दें जहाँ पे एक नई लाइन की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने न्यू लाइन में हर एक कंटेंट को लिखा है। सो यहाँ पे कुछ HTML कोड दिया है नोटपैड में, ये जो है हमें अपने नोटपैड में लिखना है। सो दिस इज़ द कंटेंट जिसमें डॉक टाइप आया, HTML ओपन, हेडिंग ओपन, फिर हमने टाइटल लिख दिया इंडिपेंडेंस डे, टाइटल क्लोज, देन हेडिंग क्लोज, देन बॉडी ओपन, फिर हमने बॉडी लिख दिया। आप देख सकते हैं BR टैग हमने जहाँ जहाँ लगाया है वहाँ पे लाइन जो है न्यू लाइन से जो है पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। एंड देन वी हैव डन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सो ये सारा कुछ हमें अपने नोटपैड में लिखना है एंड सो ये सारा कुछ हमें अपने नोटपैड में लिखना है एंड दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट कम्स टेक्स्ट एम्फसाइजिंग एलिमेंट्स. So the bold, B, italics, I and underline U elements are used to emphasize the text. टेक्स्ट को और अच्छा दिखाने के लिए हम बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन को यूज करते हैं यहाँ पे। एंड दीज आर कंटेनर टैग्स, ये कंटेनर टैग्स हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल मार्कअप्स, इन्हें हम फिजिकल मार्कअप्स भी कहते हैं। सो जो बी टैग है, ये जो टैग है इसे यूज किया जाता है टेक्स्ट को और ज्यादा बोल्डर दिखाने के लिए। फॉन्ट से और ज्यादा मोटे बोल्ड दिखने शुरू हो जाते हैं नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में। सो ये है सिंटेक्स, बी ओपन एंड बी क्लोज। फिर आता है आई टैग, ये जो टैग है इसे यूज किया जाता है अटेंशन को ड्राइव करने के लिए। रीडर का अटेंशन हम इसकी वजह से अपनी तरफ खींच सकते हैं एंड इससे जो टेक्स्ट है वो इटैलिसाइज हो जाता है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हियर। नेक्स्ट आता है यू टैग, ये जो टैग है ये क्या कर देता है, अंडरलाइन कर देता है टेक्स्ट को जो भी इसके बीच में लिखा गया है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आर गिवन हियर, तो इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो सारा कुछ अंडरलाइन हो जाएगा। नाउ लेट्स टाइप द फॉलोइंग HTML कोड इन नोटपैड एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। ये जो कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कोड पूरा हमें अपने नोटपैड में लिखना है, जहाँ पे हमने जो है बोल्ड किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इटैलिक्स किया है मैनेजेस से रन तक, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। एंड देन हमने अंडरलाइन कर रखा है विदाउट से इट तक एंड दिस कैन बी सीन हियर। सो ये जो कंटेंट यहाँ लिखा है ये सारा हमें अपने नोटपैड में लिखना है एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू हेडिंग एट्रीब्यूट्स। So heading tag is used to define different heading levels. ये जो heading tag है इसे यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए अलग अलग heading levels को HTML डॉक्यूमेंट में। And there are 6 heading levels. यहाँ पे 6 heading levels मिलेंगे H1 से लेके H6 तक, जिससे क्या होता है जो टेक्स्ट है और ज्यादा जो है ब्रॉडर होता चला जाएगा। So H1 heading style displays the text in the largest size. अगर हमने H1 लिखा तो जो टेक्स्ट है हमारा सबसे बड़े साइज में आएगा और H6 जो है सबसे छोटा साइज है। सो एंड इट इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, ये भी एक कंटेनर टैग है। सो ये आप देख सकते हैं, ये सिंटेक्स है इसका, जहाँ पे 1n का मतलब है 1 से लेके 6 तक हमें नंबर लिखना है। जैसे भी हम चाहते हैं, जितना भी बड़ा अपने टेक्स्ट को चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमें HTML कोड ये जो दिया है इसे हमें अपने नोटपैड में लिखना है, जिसमें आप देख सकते हैं हेडिंग को हमने अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग लिखा है एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट दैट इज बीइंग डिस्प्लेड। नेक्स्ट कम्स कास्केडिंग स्टाइल शीट विच इज CSS। सो CSS क्या है, इट इज अ स्टाइल शीट दैट प्रोवाइड्स द सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर डिस्प्लेइंग HTML एलिमेंट्स। ये एक स्टाइल शीट है जो कि हमें सेट ऑफ स्टाइल रूल्स देता है
HTML एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने का। एंड यूजिंग CSS अगर हमने इसे यूज़ किया तो वी कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट के कलर को, स्टाइल को, फॉन्ट के स्टाइल को, स्पेसिंग को, पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड इमेज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी इफेक्ट्स हम इसमें डाल सकते हैं CSS की मदद से। CSS helps multiple web pages of the website to share the same formatting। ये हेल्प करता है जो अलग अलग वेब पेजेस हैं हमारे वेबसाइट के, वो वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग हम शेयर कर सकते हैं इसकी मदद से। Also it provides more flexibility and control in the manner in which the content is presented। इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल को प्रोवाइड करता है कि जो भी हम कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें जो भी हमारे वेब पेज पे जो भी कंटेंट है वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कंट्रोलेबल दिखे। द CSS कंट्रोल लेआउट ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन सिंगल स्टाइल शीट। तो एक सिंगल स्टाइल शीट से ये क्या करता है, ये कंट्रोल कर देता है लेआउट बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो है सेलेक्टर property 1, property 2, value property 2, then colon property underscore 2 value। तो ये सिंटेक्स है CSS का। नाउ जहाँ पे प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी इट डिफाइंस हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स लुक ऑन द वेब पेज। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग एलिमेंट्स वेब पेज पे दिखेंगे। बैकग्राउंड, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर्टीज़ के। अगर अब हम बात करें वैल्यू की, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी के लिए हम कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज के लिए हम प्रॉपर्टी चूज़ कर सकते हैं 12, 16, 20 एक्सेट्रा। सिमिलरली आता है सेलेक्टर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर का क्या मतलब है, सेलेक्टर ये एक नेम है HTML एलिमेंट का जो कि आपको हेल्प करता है अप्लाई करने में प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़। इसकी मदद से हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि H1 हेडिंग 1 हमने यहाँ पे लिया है, कलर रेड होना चाहिए, फॉन्ट साइज 20 होना चाहिए। सो यहाँ पे जो हेडिंग है वो रेड कलर से लिखा हुआ आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS। कैसे हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं। सो CSS स्टाइल कैन बी इंक्लूडेड इन एन HTML डॉक्यूमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। इनमें से किसी भी तरीके से हम CSS को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे। पहला है इनलाइन, फिर है इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट, और फिर आता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो लेट्स मूव ऑन टू इनलाइन। सो इन दिस मेथड द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ एनी एलिमेंट इन द बॉडी सेक्शन इंक्लूडिंग द बॉडी टैग इटसेल्फ। इस मेथड में जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसे यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट के साथ बॉडी सेक्शन में जिसमें बॉडी टैग को इंक्लूड किया जाता है। वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ डिक्लेरेशंस। यहाँ पे हम कितने भी नंबर्स डाल सकते हैं और हर एक को सेपरेट करना है हमें यहाँ पे सेमीकोलन से। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, कोलन से मेंशन की गई हैं। एंड दिस इज नॉट एन एफिशिएंट यूज ऑफ स्टाइल शीट एज द डिक्लेरेशन इज टू बी रिपीटेड विथ एवरी एलिमेंट। ये एक एफिशिएंट यूज़ नहीं है स्टाइल शीट का, क्योंकि यहाँ जो भी डिक्लेरेशन है वो हर एक एलिमेंट के साथ रिपीट किया जाता है। एंड इवन इफ द सेम स्टाइल इज अप्लाइड ऑन सम अदर एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, और इसी तरीके से जो सेम स्टाइल है वो दूसरे एलिमेंट्स पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। सो इन दिस मेथड द इफेक्ट्स आर लिमिटेड टू द एलिमेंट विथ विच द स्टाइल डिक्लेरेशन हैज बीन स्पेसिफाइड। इस मेथड में जो इफेक्ट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं एंड दे आर लिमिटेड टू द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स तक लिमिटेड हैं जो कि क्या करते हैं, एक स्टाइल डिक्लेरेशन जो है देते हैं जो भी स्पेसिफाई किया जाता है यहाँ पे एम्बेडेड स्टाइल में। द इफेक्ट्स गेट अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स। जो भी यहाँ पे हम इफेक्ट्स डालते हैं वो सारे ही एलिमेंट्स में अप्लाई हो जाते हैं जो भी विथ द स्टाइल डिक्लेरेशन हैज बीन स्पेसिफाइड, जो भी उस स्टाइल डिक्लेरेशन में दिया गया है उन सब में अप्लाई हो जाएगा। सो टू क्रिएट एन एम्बेडेड स्टाइल शीट, अगर हमें एक एम्बेडेड स्टाइल शीट जो है क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा, वी मेक यूज ऑफ स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। हम हेडिंग सेक्शन में क्या करेंगे, स्टाइल टैग को यूज करेंगे। सो नेक्स्ट कम्स एक्सटर्नल स्टाइल शीट।
So in this method we define the style rule in one file and then use it with any HTML document. So इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो स्टाइल रूल है वो एक फाइल में जो है डालते हैं और उसे जो है किसी और HTML डॉक्यूमेंट के साथ यूज कर सकते हैं. It is simply a text file with an extension .css. ये एक जो है टेक्स्ट फाइल है जिसमें जो एक्सटेंशन है वो .css डाला जाएगा. Like any other file you can place the style sheet with its name. किसी और फाइल की तरह हम यहाँ पे जो स्टाइल शीट है उसके नाम के साथ लिख सकते हैं, जैसे कि style.css on your web server. Now let us use the style sheets to set various properties of body background. तो चलिए हम स्टाइल शीट्स को यूज करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज बॉडी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सेट करने के लिए. वी विल मेक यूज ऑफ एम्बेडेड स्टाइल शीट्स इन दिस चैप्टर. और इस चैप्टर में हम एम्बेडेड स्टाइल शीट्स को यूज करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज. So background properties are used to set the background style of an HTML element. यहाँ पे जो background properties है उन्हें यूज किया जाता है जो भी हमारा HTML element है उसके background style को change करने के लिए. And the various background properties are as follows. और कुछ यहाँ पे background properties दी गई हैं. Let's discuss these properties in detail using some examples. तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, उनकी वैल्यूज दी हैं और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. जैसे कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये क्या करता है, ये जो बीजी कलर है या बैकग्राउंड कलर है ये स्पेसिफाई करता है बैकग्राउंड कलर को. यहाँ पे हम कलर नेम कलर वैल्यू डाल सकते हैं. तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू डाला है. नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज. तो यहाँ पे ये क्या करता है, बैकग्राउंड के इमेज को स्पेसिफाई करता है. जो भी इमेज की URL है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं. तो यहाँ पे हमने फ्लावर की URL डाली है. नेक्स्ट है बैकग्राउंड पोजीशन. ये स्पेसिफाई करता है क्या होगी इनिशियल बैकग्राउंड पोजीशन हमारी इमेज की. तो हो सकता है वो टॉप लेफ्ट की तरफ हो, सेंटर की तरफ हो, राइट की तरफ हो, बॉटम की तरफ हो, या फिर राइट सेंटर की तरफ हो, राइट बॉटम की तरफ हो, सेंटर टॉप की तरफ हो, सेंटर सेंटर की तरफ हो. तो इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको हम चूज कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने सेंटर सेंटर को चूज किया है. नेक्स्ट बैकग्राउंड अटैचमेंट. सो ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि whether the background image is fixed or scrolls when the user scrolls the rest of the page. ये बताता है कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स है या फिर यूजर के स्क्रॉल के साथ वो भी स्क्रॉल हो रहा है. सो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है. नेक्स्ट है बैकग्राउंड रिपीट. ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट हो रही है या फिर नहीं. सो यहाँ पे हमने रिपीट x डाल रखा है. So here let's move on to the examples. We have to type the following code to set the background color of the HTML element, and here the result is also given. So ये जो चीज़ें हैं इसे हमें टाइप करना है. यहाँ पे हमने कलर पिंक डाला है तो आप देख सकते हैं पिंक कलर is here in your document. So this is the result that we will get. Next, another example is given here. So here you have to type this code in your notepad, and यहाँ पे हमने जो है एक फ्लावर का जो है बैकग्राउंड इमेज लगाया है, and here you can see the image in front of you. So like this you will get the result. So let's move on to try it out. Here you have to write down the structure of HTML program. So we have doc type HTML here, we have HTML, then we use heading, then title, then heading close, then body open, and then body close we use. So these are some of the things that we include in the structure of the HTML program, and the structure you have already learned, so you have to write it yourself. Now let's move on to flashback time. So hypertext markup language. HTML is a computer language used to create web pages. ये क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे यूज किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए. HTML describes the content, format and layout in which a web page should be displayed. ये बताता है कंटेंट, फॉर्मेट और लेआउट के बारे में जिन्हें यूज किया जाता है वेब पेजेस में, जो कि कैसे दिखेंगे वेब पेजेस में ये बताते हैं.
World Wide Web page. HTML element that requires an opening tag and a closing tag is known as a container element. वो HTML element जिसमें opening और closing दोनों tags की जरूरत होती है उन्हें हम container element कहते हैं. Similarly, HTML elements that does not require closing tag is known as empty element. वो HTML element जिसमें closing tag की जरूरत नहीं होती उन्हें हम empty elements कहते हैं. A special keyword that is used inside a tag to specify additional information about elements is called attribute. वो special keyword जिसे यूज़ किया जाता है टैग्स के अंदर वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को उन एलिमेंट्स के बारे में जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट स्टैंड्स इज द फुल फॉर्म ऑफ WYSI and this editor lets you create web pages without knowing how to write HTML codes. तो बिना HTML कोड जाने जो है आप इस एडिटर की मदद से HTML कोड्स लिख सकते हैं. Now let's move on to knowledge check. So here a exercise is mark the correct response. So the first one is a computer on the internet that shares available data and information is called a client server, website or web browser. Correct answer is server. Second, which of the following is not an empty tag? Head, body, HTML, BR. So your head tag is not an empty tag. Question number 3, which of the following element is written after the doc type HTML element? So after this, do we write body, head, HTML or title? So we write down HTML after this. Fourth one, which of the following tags does not emphasize the text? कौन सा टैग है जो टेक्स्ट पे emphasize नहीं करता है? Body, BIU. So here the correct answer is body. Fifth one, dash is the smallest size of heading. H3, H4, H5, H6. So here the correct answer is H6. So this specifies the smallest size of heading. Now let's move on to the next exercise, which is GAFL exercise. So the first question over here is a tag that does not require a closing tag is known as an empty tag. Question number 2, Google Web Designer and Adobe Dreamweaver are two of the popular what you see is what you get HTML editors. Third one, head and body are the two sections of the standard structure of an HTML document. Fourth one, attributes is the name of the HTML element to which we want to apply the property and value. Fifth one is CSS is a style sheet that provides the set of style rules for displaying HTML elements. Now let's move on to C exercise, which is true and false assessment. Here the first one is Notepad and WordPad are what you see is what you get editors. False. Second, body and head are container tags. True. Third one, HTML element that does not require a closing tag is known as an empty element. True. Fourth one, there are 7 heading levels in HTML. This is false. Fifth one, WYSIWYG stands for what you see is what you get. Yes, true. And the sixth one is heading tags are also known as physical markups. So this one is false. So like this we have to write down the answers here. Now let's move on to the exercise, which is give appropriate responses to the questions. Let's move on to the exercise, which is give appropriate responses to the questions. Here the first one is define HTML. So HTML is also known as hypertext markup language, and it is a computer language which is used to create web pages, and it also contains the layout of web pages. It displays the web pages how they will look on the website. Now question number 2, what is the difference between WYSIWYG editor and text editor?
So WYSI, WYG editor is also known as what you see is what you get editor, and here we do not need to learn about, the person does not need any knowledge of HTML, writing HTML codes here, but when we talk about text editor, so this can be written, the codes can be written manually. The person should know the basics of writing these codes, the basics of HTML should be with that person who is writing the codes here. So this is the difference between the two. Now question number 3, explain the various components that make up the HTML code. So the different components that make up the HTML code are doc type HTML. This is written at the starting, means this tells which type of document we are developing. So this is the first thing that has to be included. Next comes HTML, then we write down the heading, and in that we write down the title, then we close that title. After that we write down the body. Body contains the different elements, what all things are to be included, what all things are to be displayed on the web page. Those all things we write down in the body, and after that we close the body and our program is completed. So these are some of the components that are used in HTML code. Question number 4, what is the difference between container elements and empty elements? So the difference between the container elements and empty elements are that the container elements need an opening and closing tag, and the empty elements does not need so, it only needs the opening tag. Next, 5th one, write a short note on CSS. So CSS is used to describe the presentation of a document. It tells how the document is going to look. It defines the layout, also the color, font, etc. These all things come under this. Next, question number 6, how can you include CSS styles in HTML and explain in detail? So we can include CSS styles in HTML by following the different codes and the elements that are written here. So here, with the help of this, we can change the background style of our document, means the web page. We can also decide the font, the alignment, the layout. So these all things are included in CSS, and we can include this, and we have already learnt about them. So the rest of the things that you think is important, you can add yourself in these answers. So with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.